Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, today in mathematics, we are going to start lesson number 9, that is some applications of trigonometry. Now, dear students, in this chapter, we will learn some application means practical uses of trigonometry, which we have learned in the 8th chapter. Okay. Now, in this ninth chapter, example 1, 2 and 3 are there. Remaining all the examples are deducted from our syllabus due to COVID-19. Now, exercise 9.1, only one exercise is there. In that exercise 1, 2, 3, 4 and 5 questions are only there. In short, you have to remember only 8 questions, 3 examples and 5 exercise questions. Total 8 questions for this chapter. Okay, now to understand and to learn this chapter, you should be very clear with the base of 8th chapter. You should know each and every trigonometric ratio as well as a table. Okay, now let's start our topic with the first example. Listen, before starting this example, I would like to introduce line of sight. See, suppose this is an object. Suppose this is A and this is B. Okay, here a person is standing, suppose C. Now this person is observing at the point B. This person is observing to the point B. तो ये जो लाइन है जो हमें हाइपोटेनियस के नाम से जाना जाता था, ये बन गया आपका LOC, मीन्स लाइन ऑफ साइट. LOS, not C, line of sight. Okay, this is the distance between the object and the person. Distance between the object and the person. Now ये ऊपर देख रहा है, सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन. अभी सीन थोड़ा चेंज कर देते हैं. यहाँ पे टॉप पर कोई एक बंदा खड़ा हुआ है, वो नीचे की ओर देख रहा है. यहाँ पे ये नीचे की ओर ये पॉइंट सी को देख रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन. अभी हॉरिजॉन्टल लेवल से लेके यहाँ पे जब एंगल बनेगा उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसे कहेंगे हम लाइन ऑफ साइट. ओके, गुड. मूविंग अहेड. First question. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. Okay, from a point on the ground which is 50 meter away from the foot of a tower. Angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. Find the height of the tower. ओके, अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप इमेजिन कर लो कि ये टावर है. सो दिस इज द टॉप ऑफ द टावर एंड दिस इज द फुट ऑफ द टावर. ये टावर का फुट है और ये है टावर का टॉप. फुट से कितना दूर? 15 मीटर अवे. फुट से 15 मीटर अवे कोई यहाँ पे है. ओके, इसका नाम दे देते हैं हम C. एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है. नीचे से ऊपर की ओर, तो एंगल यहाँ पे बनेगा. ये है एंगल 60. ओके, नाउ दिस इज गिवन, दिस सेक्शन इज गिवन
एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है। ओके ये वाला सेक्शन दिया गया है, ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था एंगल के सामने जो है वो है ऑपोजिट, एंगल के बाजू में जो है बगल में जो है वो एडजेसेंट, मीन्स ए बी इज ऑपोजिट साइड and BC is adjacent side. Say yes or no. Okay. Now, see student, you are having adjacent and you need to find opposite. So ये opposite और adjacent का combination किस में है? Yes, you will say the answer. Sir ये tan थीटा में है और cot थीटा में है, दोनों में है। tan थीटा है, उसका है tan थीटा इक्वल्स टू ओपो बाय एडजेसेंट। ओके कितना एंगल है 60, tan 60। ऑपोजिट जो हमें पता नहीं है ए बी, एडजेसेंट जो हमें पता है वो है बी सी। अभी देखो tan 60, सपोज आपको वैल्यू नहीं पता तो आप क्या करोगे sin 60 बाय cos 60। sin 60 आपको पता है ये है √3/2 sin 60 और cos 60 है 1/2, 2 हो गया डिडक्ट, मीन्स sin 60 tan 60 की वैल्यू क्या हो गई √3। AB इज अननोन, BC इज 15, मल्टीप्लाई, so it is 15 under √3 equals to AB. So height of tower is 15 under √3 meter. Clear? Now if the question are suppose this is a question and you are confused, you have to use tan theta और cot theta, क्योंकि ये तो दोनों में आता है। डी स्टूडेंट्स अगर आप cot theta से जाएंगे फिर भी आपको यही आंसर मिलेगा। ओके सो यू कैन ट्राई दैट थिंग। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो नेवर बी कंफ्यूज, be confident and whatever you are doing that is correct. Okay so have faith in yourself. Okay I hope it is clear, and suppose you want to keep the value of under √3 you can keep 1.73. okay now this was the example number 1. okay now moving ahead with the example number 2. आपको होमवर्क में क्या करना है, यही सम आप कॉट थीटा लेके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ओके एग्जाम्पल नंबर 2, an electrician has to repair an electric fault on a pole. पोल जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उसका जो फॉल्ट हुआ है उसमें जो खराबी आई है उसे रिपेयर करना है। ठीक है इलेक्ट्रिशियन को, जो पोल है उसकी हाइट है 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके थोड़ा इसको ड्राइंग के जरिए समझते हैं। ये है पोल A एंड B, पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर, ये रही पोल की हाइट, लेकिन उसे 1.3 टॉप से थोड़ा कम आके रिपेयर करना है। यहाँ पे बैठ के रिपेयरिंग नहीं होगा, आपको भी पता है रिपेयर यहाँ पे करना है। तो इतना जो डिस्टेंस कट हो गया है वो है 1.3 मीटर, मीन्स वो यहाँ पे अभी बैठेंगे। ठीक है ओके सो शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके इसे नाम दे देते हैं सी। What should be the length of the ladder that she should use
which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? Okay. Now dear students, क्वेश्चन क्या है, उसे जो लेडर है यहाँ पे उसको पहुंचना है, तो इसे लेडर यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि लेडर को फुट से कितना दूर रखे ताकि वो यहाँ पे पहुंच सके, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अभी देखो, तो इतना हाइट ही उसको अचीव करना है ना, वहाँ उसको कहाँ 5 मीटर पे जाना है, उसको तो इतना ही हाइट अचीव करना है। तो ये पूरा 5 है, ये जो 1.3 है वो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। सो 5 - 1 दैट इज 4 एंड 4 - 0.3 दैट इज 3.7, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 3.7 मीटर। चलो अच्छा हुआ, ये साइड तो हमें पता चल गया। सो अभी आपका ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको इतना ही आपको कंसिडर करना है। चलो एंगल के ऑपोजिट कौन है वो पहले लिख लो। दिस इज ऑल द रफ वर्क यू शुड डू इन योर माइंड, ओके। ऑपोजिट है सीबी, ऑपोजिट है सीबी। एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट जो है वो है बीडी, और हाइपो जो है वो है सीडी, ठीक है। कितनी चीजें हमें फाइंड करनी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, मीन्स ये हमें सीडी भी फाइंड करना है, ओके। व्हेन इंक्लाइन एट द एंगल 60 ऑफ, ओके डन। व्हाट आर रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन एंड हाउ फार फ्रॉम द फुट, मीन्स हमें यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, ओके। चलो डियर स्टूडेंट्स, अभी सबका ध्यान यहाँ पे, आपके पास ये एंगल है, ये इसे कहते हैं ऑपोजिट और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यस। ऑपोजिट है, एंगल है, अगर हाइपोटेन्यस चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, साइन थीटा, ओके। सो साइन थीटा equals to, formula is opposite, means I am writing CB by hypotenuse, that is CD, okay. Sine 60 degree equals to CB, that is 3.7 divided by CD, okay. Sine 60 that is √3/2 equals to 3.7 डिवाइडेड बाय CD। चलो CD को यहाँ पे लाते हैं, ये √3 को नीचे और ये इसको मल्टीप्लाई, मीन्स CD इक्वल्स टू 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, ओके। चलो हमें √3 की वैल्यू दी गई है 1.73, सो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1.73 से। 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.73, अगर आप इसका डिवीजन करेंगे तो अप्रॉक्स आंसर जो टेक्स्ट में दिया गया है वो है 4.28 मीटर और लिखा हुआ है अप्रॉक्स। चलो ये लेडर की लेंथ आ गई, सो लेडर को उसे कितना लेंथ का लेना चाहिए, 4.28 मीटर, डन, ओके। सो ये क्वेश्चन मार्क वाली चीज अभी सॉल्व हो गई, 4.28, ओके। अभी ये बाकी है, मीन्स एडजेसेंट बाकी है, आपके पास ऑलरेडी हाइपोटेनियस है, एडजेसेंट बाकी है, हाइपोटेनियस है, सो यू कैन गो विद द cos थीटा। आई होप यू आर क्लियर। cos 60 equals to adjacent, that is missing, BD divided by hypotenuse, that is CD. cos 30 that is 1/2, okay.
cos 30 that is what 1/2. सॉरी माय मिस्टेक, मैं बोल रहा था cos 60 की वैल्यू और बोल रहा था cos 30. सो cos 60 ये है 1/2. BD हमें फाइंड करना है. CD हमारे पास है 4.28. इसे यहाँ पे ले जाइए आप. 4.28 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू BD. चलो अभी आधा ही करना है. 4 का आधा हो गया 2, 2 का आधा 1 और 8 का आधा 4. सो उसे आपको कितना दूर रखना है? 2.14 मीटर. डियर स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉट थीटा लिया गया है. मैंने आपको साइन और कॉस से ये पूरा सम करवाया है. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू कन्वे द मैसेज, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि टेक्स्ट बुक में गलत है या फिर लेंथी है या फिर हार्ड है. मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके दिमाग में जो आइडिया आएगा, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा, उसी से आपको सॉल्व करना है. आप इसे रट्टा नहीं मार सकते. ठीक है. आई होप you are clear within each and everything, dear students. Thanks for watching this video, dear students. Thank you so much.